Good morning, students of Bal Mandir School, Mandi Kilyawali. Today we are going to start Unit 3rd of 11th class Business Studies subject, and the name of the unit is Public-Private Sectors. Not global enterprises. Global enterprises are totally deducted from your syllabus due to COVID-19 situation. So in this unit we have only one chapter, that is public and private sector. So in detail we will learn about public sector as well as private sector, their types, features, merit, demerits, etc. So first of all, I want to tell you that the sector of an economy, especially in India, sector of Indian economy is divided into two ways. First one is public sector, second one is private sector. So first of all, public sector. What do you mean by public sector enterprises or public sector? So in simple language we can say that public sectors are those sectors or firms which are owned, controlled and managed by private businessmen. The main objective of such undertaking is profit making, means ऐसे फॉर्म्स जिसको ओन्ड मीन्स जिनके ऑनर्स, जिनको कंट्रोल करने वाले, जिनको मैनेज करने वाले, जिनमें इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग जो हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं. कोई भी इजीली प्राइवेट सेक्टर में अपने जो फॉर्म्स हैं सोल ट्रेड की फॉर्म में, पार्टनरशिप फॉर्म में, कॉर्पोरेट ये आपका प्राइवेट कंपनीज़ की फॉर्म में, जॉइंट हिंदू फैमिलीज़ की फॉर्म में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. क्लियर? सो दैट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय private businessmen are known as private sector enterprises. So the main objective of these types of organizations, private sector enterprises, are to earn profit only. Clear? ये mainly profit earn करने के point of view से ही setup होंगे. So the features you can say, first one is profit motive. The main or the aim of the private sector is to earn maximum profit, and they are responsible, means in today's concept you can say that social responsibility is also there by the private individual persons to the society members. वो society members के against आजकल socially responsible हैं just because of the awareness of consumers or customers. Secondly, you can say that private ownership is there, means anyone can start their own business in private sector. ठीक है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करके बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के अपनी ओनरशिप में अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं. Thirdly, you can say that profit as evidence of success, means जितना इनको profit होगा उनसे इनकी सक्सेस को आप मेज़र कर सकते हो. सो यू कैन से दैट दी प्रॉफिट इज़ दी मेज़रमेंट और डिग्री ऑफ सक्सेस. क्लियर? जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे उतना ज़्यादा सक्सेसफुल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है. बट इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की पेमेंट, मीन्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पे करना, ये कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है. जो बिज़नेस, प्राइवेट बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सोसाइटी के अगेंस्ट फुलफ़िल करते हैं, सिर्फ वो ही लॉन्ग टाइम पीरियड तक मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट यू कैन से दैट प्राइवेट मैनेजमेंट इज़ देयर, बिकॉज private investment is there. So you can say that the members who invested their money are responsible to run these types of organization. They are responsible to take any type of managerial or non-managerial decisions. Means सारे के सारे decisions वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑनर्स हैं वही लेंगे. वो खुद ले सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं अगर कंपनी की फॉर्म में बिजनेस चला रहे हैं तो. Next and the main feature of this organization is, this sector is less political intervention. You can say that no or negligible political interference is there as compared to public organizations. Public sector के comparatively private sector में
पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है मींस सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के जो इंटरफेरेंसेस हैं वो मिनिमम रहते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो अ बेनिफिट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यू कैन से. Next is types of private sector enterprises. So as we have discussed in previous chapters that sole trade or sole proprietorship is there. Hindu undivided family business is also a form of business organization. Partnership business is there. Cooperative societies, joint stock companies are also there. So these are the types of private sector enterprises. आप प्राइवेटली अपना सोल ट्रेड ओपन कर सकते हो, अपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के फॉर्म में बिज़नेस कर सकते हो, आप प्राइवेटली पार्टनरशिप की फॉर्म में बिज़नेस कर सकते हो, अपनी प्राइवेट कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप कर सकते हो, अपनी प्राइवेट कंपनी बना सकते हो. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस. नेक्स्ट इज़ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. कि प्राइवेट सेक्टर को हम डिटेल में चैप्टर वाइज कर चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर एंड द टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर. सो इन डिटेल नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पब्लिक सेक्टर. So public sector, you can say that the sectors or enterprises or firms which are owned and managed by central government or state government or any local government or by both. मीन्स या तो सभी मिलकर चलाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वेंस हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी कुछ परसेंटेज की इन्वॉल्वेंस हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वेंस हो सकती है, या सभी मिलके इन्वेस्ट कर सकते हैं अमाउंट, या फिर कोई एक मेनली सपोज जैसे रेलवे है तो रेलवे में सेंट्रल गवर्नमेंट की ही इन्वेस्टमेंट है मेनली. क्लियर. तो मिलके भी चला सकते हैं, सारी गवर्नमेंट्स की इन्वेस्टमेंट्स रह सकती हैं, और इंडिविजुअल कोई एक गवर्नमेंट भी इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइप के सेक्टर्स में अपने ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप कर सकता है. सो द बेसिक पर्पस इज़ टू रेंडर सर्विसेज टू सोसाइटीज़. मीन्स इनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इनका मेन एम सोसाइटी वेलफेयर के रिगार्डिंग रहता है, एंड टू प्रोवाइड मैक्सिमम सर्विसेज टू द सोसाइटी मेंबर्स. ठीक है. ये अपने ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को इस पब्लिक सेक्टर में सेटअप करते हैं जो मेनली प्राइवेट सेक्टर्स में लोग प्राइवेट इंडिविजुअल सेटअप नहीं कर सकते, जिसमें ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, लाइक LIC, लाइक रेलवेज़, लाइक पोस्टेज एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट. क्लियर. सो इनका जो मेन मोटिव है वो सोसाइटी वेलफेयर होता है, सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है. नो डाउट प्रॉफिट अर्निंग भी रहता है, लेकिन प्रॉफिट अर्निंग सेकेंडरी जो स्टेप है, सेकेंडरी जो एम है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, उस फॉर्म में रहेगा. क्लियर. सो ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर जो है वो डिराइव्ड हुआ. कौन कौन सी लिमिटेशंस हो सकती हैं? लाइक ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ देयर इन सम टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ह्यूज कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड, सो दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट सेटअप और फॉर्मुलेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर्स. ठीक है. ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती थी, वो सोसाइटी के वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें अर्निंग कम रहती है, उन ऑर्गेनाइजेशंस को प्राइवेट सेक्टर सेटअप नहीं कर सकता. तो उनके लिए पब्लिक सेक्टर की रिक्वायरमेंट हुई. ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका गेस्टेशन पीरियड लॉन्ग रहता है, मीन्स जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना होता है, लेकिन आपको जो प्रॉफिट है वो एक टाइम पीरियड के बाद आना स्टार्ट होता है, बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट करता है, लाइक रेलवे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो उन बिज़नेस फॉर्म्स के लिए, उन डिपार्टमेंट्स के लिए, उन फॉर्म्स के लिए पब्लिक सेक्टर की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फील हुई, और इसीलिए इनको पब्लिक सेक्टर के अंडर किया गया. सो दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, दीज टाइप्स ऑफ फॉर्म्स आर टोटली owned, controlled and managed by central government or state government or local government or by both. Clear. So you can say that different types of public sectors are there, like departmental undertaking, public corporations. Clear. So we will discuss these types in next lecture. Firstly, meaning is clear. Now we have to discuss about the features, some special features regarding public enterprises. So आप ये मत सोचिएगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट
कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वो भी पब्लिक सेक्टर के अंडर हैं। यू हैव टू इंक्लूड ओनली दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन whose main aim is to provide services to society on economic basis, means profit earning is also there। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो चैरिटेबल पॉइंट ऑफ व्यू से सेटअप किए जाते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक वेलफेयर के लिए सेटअप किए जाएंगे, वो आपके पब्लिक सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं होंगे, लाइक योर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एक्सेट्रा। ठीक है, आपको सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक सेक्टर्स में इन्वॉल्व करने हैं जिनका इकोनॉमिक पर्पस होगा, जो बिज़नेस एक्टिविटी होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, प्लस सोसाइटी को सर्विसेज देने के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी करेगा। मीन्स एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का होना पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन के लिए मस्ट है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस और स्कूल्स को हम पब्लिक सेक्टर्स में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। आपको सिर्फ वही पब्लिक सेक्टर में इन्वॉल्व करने हैं, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को। यू कैन से दैट वन वर्ड इज़ देयर, दैट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। आप बहुत से बैंक्स में विज़िट करोगे, यूको बैंक है या MMTC है लिमिटेड कंपनी, सो वन लाइन इज़ देयर अंडर द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ a government of India enterprises, in bracket you can found. So that type of organizations are included in public sectors. So public sectors involved the firms or organizations which are owned, controlled and managed by government. Government means central government, maybe state government or local government, or by both. Clear? And that type of organizations are having means economic activities, means profit earning is the priority with the social welfare। ठीक है, सोशल वेलफेयर भी रहेगा और प्रॉफिट अर्निंग भी रहेगा। प्रॉफिट अर्निंग के साथ वो सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस के नेम के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग होगा, वही आपके पब्लिक सेक्टर्स के अंडर आएंगी। सो सम मोर एग्जांपल्स आर देयर, लाइक नाल्को, Hindustan Petroleum Corporation Limited is also there. Bharat Petroleum Corporation is also a type of government enterprises. So next one is features of public enterprises. Features में आप क्या लिख सकते हो? First one is you can say the joint ownership or state ownership. State ownership means the government of India's ownership, like state government is there, central government is also there, और local government is also there. So या तो सभी के सभी गवर्नमेंट्स मिलके टोटली इन्वेस्ट करेंगी, या कोई एक गवर्नमेंट टोटली इन्वेस्ट करेंगी, या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जिसमें सारी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की नहीं होती। ठीक है, सो मोर देन 0.5% गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, means total 50% is the share of the investment. So the government maybe by the central government or by the state government or by both are invested 51% shares, 51% capital in that particular organization. So that organizations are also known as public sector organizations. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले, स्टेट गवर्नमेंट अकेले, लोकल गवर्नमेंट अकेले या जॉइंटली पूरी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी वो पब्लिक सेक्टर के अंडर आएगा। अगर मोर देन 0.5% की इन्वेस्टमेंट रहती है तो भी वो पब्लिक सेक्टर के अंडर आएगा। मींस 51% की इन्वेस्टमेंट अगर रहती है तो भी उसको हम गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेज ही बोलेंगे। क्लियर? सो जॉइंट ओनरशिप और यू कैन से स्टेट ओनरशिप। नेक्स्ट वन यू कैन से स्टेट कंट्रोल। स्टेट कंट्रोल मीन्स द मैनेजमेंट एंड द ओनरशिप बोथ आर इन द हैंड्स ऑफ central government, state government or any other government. Clear? So one department is there for similar type of activities, like post and telegram services are handed over to post and telegram department. मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना देती है और जिस पे सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, एंड वन मिनिस्टर इज़ देयर दैट इज़ द हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, लाइक रेलवे डिपार्टमेंट इज़ देयर, सो वन रेलवे मिनिस्टर इज़ देयर। All types of merits or demerits regarding that railway department, that person, that minister is responsible against public through parliament। ठीक है, पार्लियामेंट में उसको जवाब देना होता है कि उसके डिपार्टमेंट्स के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या मेरिट्स रही हैं। दैट सिंगल मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द होल एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट। सो ऐसे ही पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है,
पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो सर्विसेज हैं वो उस डिपार्टमेंट के अंडर हैं. एंड वन मिनिस्टर इज़ देयर, दैट इज़ मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन. सो दैट मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू the whole activities of their department. Clear? Some more examples are there like Bhakra Nangal Control Board, Hirakund Control Board, etc. So these are the departments, different departments or different boards. You can say boards are also involved in these types of organization. So या तो आप डिपार्टमेंट्स की फॉर्म में डिवाइड कर देते हो एक्टिविटीज़ को, या आप बोर्ड्स बना देते हो. भाखड़ा नंगल बोर्ड है, वो भाखड़ा नंगल बोर्ड जो है वो भाखड़ा से रिलेटेड सारे डिसीजंस कि किस टाइप से जो है फ्लो करना है, कैसे उस वहाँ की जो पावर जनरेट हो रही है कहाँ यूटिलाइज करनी है. ऑल टाइप्स ऑफ डिसीजंस आर टेकन बाय दैट पर्टिकुलर बोर्ड. ठीक है. एंड दैट बोर्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल अगेंस्ट पब्लिक इन द पार्लियामेंट. क्लियर? Next one, you can say financial freedom. Financially these types of organizations are dependent on government. ठीक है. फाइनेंस इन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा. लाइक रेलवे है, गवर्नमेंट टोटली प्रोवाइड करवाएगा. पोस्टेज एंड टेलीग्राम सर्विसेज डिपार्टमेंट है, उसके लिए भी गवर्नमेंट है. बट गवर्नमेंट कैन टेक लोन फ्रॉम पब्लिक. ठीक है. अब लिबरलाइजेशन पॉलिसी 1991 में इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हुए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वन लिबरलाइजेशन पॉलिसी इज़ देयर. एंड अकॉर्डिंग टू दैट लिबरल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट कैन ऑब्टेन लोन फ्रॉम पब्लिक so that these types of organizations are run by the government successfully. ठीक है. गवर्नमेंट अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए पब्लिकली लोन ले सकती हैं. इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस को, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को पर्टिकुलरली और सेफली और सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए, चलाने के लिए. सो दीज टाइप्स ऑर्गेनाइजेशंस आर विच आर रन बाय public sector are totally dependent regarding to their financial needs on government. Next you can say that service motive is there. ठीक है. ये जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती है, द मेन मोटिव ऑफ दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर टू प्रोवाइड सर्विसेज टू सोसाइटी मेंबर्स. ठीक है. इनका जो मेन एम है वो सोसाइटी के मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना है, इवन इफ़ देयर इज़ अ लॉस इन द एस्टैब्लिशमेंट, इन इट्स एस्टैब्लिशमेंट. मतलब अगर इनके एस्टैब्लिशमेंट में या इनको कॉन्टीन्यूसली रन करने में अगर गवर्नमेंट को लॉस भी होता है तो भी वो कर सकती है. मींस तो भी वो कंटिन्यू करेगी. रेलवे डिपार्टमेंट को काफ़ी टाइम ऐसा हुआ जब लॉस बियर करना पड़ा, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने रेलवे डिपार्टमेंट को बंद नहीं किया, बिकॉज द मेन एम ऑफ दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज टू सोसाइटी. ठीक है. तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपने फ़ायदे के लिए सेटअप करते हैं, अपने प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव लेकर सेटअप होते हैं, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर्स में ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका मेन मोटिव सोसाइटीज़ को सर्विसेज प्रोवाइड करना है. अगर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बिहाफ पे उनको कुछ लॉस भी होता है तो भी ये ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू रहती है. नेक्स्ट वन इज़ public accountability. Public accountability means as we discussed earlier that the management is performed by the boards or departments, etc. So one department is there and one minister is there. That minister is the head of that department. Same as in the class, in a class one monitor is there and that monitor is responsible for the behavior or the वेल कंडक्ट ऑफ देयर मीन्स क्लासमेट्स. जैसे एक क्लास में एक मॉनिटर की पोजीशन रहती है, वो क्लास टीचर के एब्सेंस में क्लास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इन द सेम फॉर्म वन डिपार्टमेंट इज़ देयर एंड वन मिनिस्टर इज़ देयर, दैट इज़ द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट. सो दैट मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल अगेंस्ट पब्लिक इन पार्लियामेंट, इन द पार्लियामेंट, और यू कैन से स्टेट असेंबलीज. स्टेट असेंबलीज में, पार्लियामेंट में उस मिनिस्टर को लोग क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं. वो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है अपने डिपार्टमेंट की हर एक सक्सेस के लिए या फेलियर के लिए. तो अगर लगता है कि वो सक्सेसफुली रन कर रहा है देन दैट मिनिस्टर विल बी कंटिन्यूड. अदरवाइज गवर्नमेंट हैज़ राइट टू चेंज दैट पर्टिकुलर मिनिस्टर फॉर दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. क्लियर? सो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इज़ देयर. अब प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, सो दैट प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल अगेंस्ट पब्लिक. वो पब्लिक के अगेंस्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं.
but these types of public organizations, public sectors are responsible, totally responsible towards government as well as to the public. Clear? Next one is you can write the features of public sector, that is bureaucracy in management. Bureaucracy of management means one management committee is there, administrative officers are there, and that officers are totally responsible regarding to take any type of decisions regarding to move any type of activities of these types of sectors. Means if in a private institutions, in a private sector, the decisions are taken by the officers or the individuals very quickly, but in these types of public enterprises, decisions are taken by with the discussion of government officers, administrative officers. So this is one feature of public sector, that in these types of enterprises, decisions are not taken in a prompt manner or in a quick manner. क्लियर? इन सेक्टर्स में, पब्लिक सेक्टर्स में आपको छोटे से छोटा डिसीज़न लेने के लिए भी बहुत लंबा प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। छोटे से छोटे डिसीज़न के लिए भी आपको हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। दिस इज़ द ओनली रीज़न दैट अननेसेसरली डिले इज़ देयर रिगार्डिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ पब्लिक सेक्टर. Next, you can write the features of public sector, that the harmonious industrial relation between the employees and employer, because the employer is the government sector, or you can say the central government or state government or local government, and the employees or consumers, or you can say ultimately the entire society, they means the private public sector set up a very healthy or very means good relations towards that parties. क्लियर? जो भी एम्प्लॉयज़ सेटअप करेंगे इस सेक्टर के, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके रिगार्डिंग भी गवर्नमेंट जो है बहुत पोलाइट और अच्छे वाले डिसीजंस लेती है, उनके लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज़ होती हैं उनके वेलफेयर के लिए, क्योंकि सोसाइटी वेलफेयर जो है वो मेन मोटिव है इस टाइप के सेक्टर के लिए। तो ये पब्लिक सेक्टर में जो है एक्सप्लॉयटेशन एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग कह लो या कस्टमर्स के रिगार्डिंग कह लो, वो निग्लिजिबल रहता है, ज़ीरो रहता है। बट इन प्राइवेट सेक्टर यू कैन से मोर एक्सप्लॉयटेशन इज़ देयर टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ और कंज्यूमर्स एज़ कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में जो भी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जाएंगी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप किए जाएंगे, दैट आर टू बिल्ड मीन्स हारमोनियस रिलेशन और हेल्दी बॉन्डिंग with the employees as well as customer and the entire society members. Next, you can also write that these types of sectors are very much useful for all the fields, you can say. Means for every sector public enterprises are helpful or useful. ऐसे बहुत से आपको means ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगे, एंटरप्राइजेस मिल जाएंगे, जहाँ के लिए पब्लिक सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बेनिफिशियल है। लाइक पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट, प्रॉफिट इज़ निग्लिजिबल इन दैट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट, बट ह्यूज कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड एंड यू कैन से द लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड इज़ देयर। बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद अगर आपको प्रॉफिट मिलेगा तो मिलेगा, अदरवाइज़ इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है। सो दीज टाइप्स ऑफ वर्क आर परफॉर्म्ड बाय पब्लिक सेक्टर ओनली। ये ऐसे डिपार्टमेंट सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही सेटअप कर सकती है, और ये सेक्टर, इससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ तो होती ही है, ठीक है, लोगों के वेलफेयर के लिए सर्विसेज भी आती हैं, और थर्डली ये बाकी अदर सेक्टर्स को भी प्रमोट करता है। मीन्स प्राइवेट सेक्टर को भी ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म में प्रमोट करेगा। नेक्स्ट, यू कैन से मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर्स। मोनोपोली मीन्स यू कैन से कंट्रोल, मीन्स एकाधिकार जिसको बोलते हैं। सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ एंटरप्राइजेज इज़ देयर इन एनी फील्ड, देन वी कैन से दैट मोनोपोली इज़ देयर। ठीक है, अगर किसी फील्ड में आप जेन्युइन मार्केट में भी लगा लें, अगर एक ही शॉप है, तब हम कहते हैं कि यहाँ मोनोपोली है इस शॉपकीपर की, कि वो अपने अकॉर्डिंग रेट फिक्स कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है, बिकॉज नो कॉम्पिटिटर इज़ देयर इन द फील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, सो कुछ रीजन्स में, कुछ एंटरप्राइजेज़ में, कुछ जगह पे पब्लिक सेक्टर्स की भी मोनोपोली है।
means like railway department is there, no other competitor is there as compared to railways, ठीक है ना। रेलवे के कंपैरेटिवली कोई भी जो है आपको एंटरप्राइजेज़ नहीं मिलेंगे। रेलवे सिर्फ पब्लिक सेक्टर में ही सेटअप हो सकता था। ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड थी, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड था, और जो इनका मेन मोटिव था पब्लिक सेक्टर में सेटअप करने का, दैट इज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज टू सोसाइटी मेंबर्स और द बेनिफिट्स टू सोसाइटी मेंबर्स। तो ये प्राइवेट सेक्टर के बस की बात ही नहीं थी। तो पब्लिक सेक्टर में रेलवे का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, ना ही प्राइवेट सेक्टर में है। ऐसे ही पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, सर्विस बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, कुछ ऐसे रीजन्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर में ही सेटअप हैं। पब्लिक सेक्टर में उनकी मोनोपोली है, ये अपने अकॉर्डिंग जो हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, और मोस्टली जो इनके डिसीजंस होते हैं वो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी मेंबर्स के रिगार्डिंग ही रहते हैं। ओके, सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर. You have to learn meaning of private and public sector, then features of private and public sector, then you have to learn the types of public and private sector.